ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-3 ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ +2 ਚ ਨੰਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਤੇ 53% ਸੀ ਓਵਰਆਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ ਕੇਸ? ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸੇਮ ਹੀ ਏਜੰਟ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਸੇਮ ਏਜੰਟ। ਓਕੇ, ਸੇਮ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਅਰਲੀ ਦਿੱਤਾ? ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ? ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਗਏ? ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ? ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 3D ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ? ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਫੋਰਥ ਟਾਈਮ ਲਾਈ? ਫੋਰਥ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ ਪਲਾਨ, GIC ਰਿਫੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਸਰ ਨੂੰ ਐਸਟਰ ਫੋਰਜਨ 17 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਓਕੇ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ प्रभशरण के केस में थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। अभी हम प्रभशरण के केस को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड वी होप कि थ्रू दिस वीडियो वी कैन रीच आउट टू दोज स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग कंटिन्यूअस वीजा रिफ्यूजल्स एंड वी कैन हेल्प आउट सम स्टूडेंट्स टू कन्वर्ट देयर वीजा रिफ्यूजल्स इनटू वीजा अप्रूवल्स। सो प्रभशरण के केस में जो मेन इशू था इनके वीजा रिफ्यूजल्स का, जो मेन पॉइंट था, दैट वाज रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन। एवरी टाइम इनको जो है गलत कोर्स दिया गया। इनकी जो प्रीवियस स्टडीज थी, 12th ग्रेड इन्होंने पास किया आर्ट्स स्ट्रीम में, जिसमें इनके 53-54% ओवरऑल मार्क्स थे एंड एक सब्जेक्ट में इनके बिलो 40 भी थे। सो वी कैन कंसिडर इनके जो एकेडमिक्स हैं वो थोड़े वीक थे। बट इनको जो कोर्स दिए गए, फर्स्ट टाइम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड टाइम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, थर्ड एंड फोर्थ टाइम एनिमेशन। सो जो इनका बेसिकली जो इनका रीजन आ रहा था हर बार वीजा रिफ्यूजल का, दैट वाज रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन। बट ये जिस भी एजेंट के पास जाते रहे उन्होंने बिना इनके प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल पे वर्क किए कि किस कारण से वीजा इनका रिफ्यूज हुआ है, कोर्स देते गए अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, एंड इनका वीजा रिफ्यूज होता गया। जब ये हमारे पास आए, क्योंकि इतने ज्यादा अलग अलग कोर्सेज में इनका वीजा रिफ्यूज था, सो हमने इनके केप्स नोट अप्लाई किए प्रॉपर इनका स्पेसिफिक रीजन जानने के लिए इनका वीजा रिफ्यूज क्यों हो रहा है। सो जो केप्स नोट में निकल के आया, जो अराउंड सभी केप्स नोट में एक रीजन मेन निकल के आ रहा था, रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन और इररेलेवेंट कोर्स सिलेक्शन, या फिर जो इनके कोर्स सिलेक्शन है वो इनकी प्रीवियस स्टडीज के हिसाब से बहुत टफ है, जिसके हिसाब से एम्बेसी जो है कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं हो पा रही थी कि जो ये स्टडी ले रहे हैं वहां पर जाके इसको ये प्रॉपरली सक्सेसफुली जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट की स्टडी की इंटेंशन पे डाउट क्रिएट करता है एंड वीजा रिफ्यूजल का कारण बनता है। सो इनके केप्स नोट्स की स्टडी के हिसाब से, प्लस हमारी नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने इनके कोर्स सिलेक्शन पर काफी काम किया, क्योंकि इनके काफी ज्यादा जो रीजन थे कोर्स रिलेटेड ही थे वीजा रिफ्यूजल के, तो वो एक मेजर फैक्टर था इनका, जो आगे हम वीजा अप्रूवल के लिए जो है देख सकते हैं, क्योंकि वीजा अप्रूवल इनका कहीं ना कहीं कोर्स पे ही डिपेंड करता था। तो इनका प्रॉपर एक जो है कोर्स सिलेक्ट करने के बाद जो सबसे बड़ा इशू हमारे सामने था वो ये था कि इनकी एसओपी में इनके कोर्स की मोटिवेशन को कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि इनके जो प्रीवियस जो वीजा रिफ्यूजल थे वो बहुत ही अलग अलग, बहुत ही डाइवर्स कोर्सेज से थे, जैसे कि फर्स्ट टाइम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड टाइम अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड एंड फोर्थ टाइम एनिमेशन। सो कहीं ना कहीं वो आपस में बिल्कुल भी कोर्सेज लिंक नहीं होते हैं। अगर हम एक कोर्स के साथ कहीं ना कहीं मैचिंग कोर्स लेंगे तो सेकंड या थर्ड कोर्स के साथ वो मैचिंग नहीं बनेगी।
सो वो एक काफी ज्यादा मेजर रीजन था एसओपी पे वर्क करने का, एंड एसओपी पे प्रॉपरली वर्क करके हमारी एक्सपर्टीज से हमने उन कोर्स को जो आगे इन्होंने लिया है और जो इनकी प्रीवियस चॉइस थी उसके साथ कहीं ना कहीं मैच किया, उसके अकॉर्डिंगली एसओपी बनाई गई ताकि इनकी जो प्रीवियस जो इनके कोर्सेज सिलेक्ट किए थे इन्होंने वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड रहे, एंड आगे जो इन्होंने कोर्स लिया है वो भी जस्टिफाइड रहे। सो उसका रिजल्ट आप सबके सामने है कि प्रभशरण का वीजा आज अप्रूव हो चुका है। अभी फर्दर मैं एक बच्चों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके वीजाज रिफ्यूज हुए हैं या करंटली रिसेंट रिफ्यूजल आई है या ये है कि 3-4 बार रिफ्यूज हो गए एंड वो प्लान ही ड्रॉप कर चुके हैं अपना कनाडा स्टडी करने का, सो उनको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। प्लीज अपने जो आगे अगर आप रीअप्लाई करने को देख रहे हैं, इंस्टेंटली आप रीअप्लाई मत करो। एम्बेसी ने आपका जो वीजा रिफ्यूज किया वो किसी पर्टिकुलर रीजन से किया है, कुछ स्ट्रॉन्ग रीजन है जिस करके आपका वीजा रिफ्यूज हुआ है। सो कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट आते हैं 2 बार 3 बार रिफ्यूजल होती है उनकी सो वो यही बोलते हैं कि हमने सेकंड टाइम ऐसे ही अप्लाई कर दिया, हमारे किसी फ्रेंड ने हमें गाइड किया या हमारे किसी रिलेटिव ने गाइड किया कि तुम दोबारा अप्लाई करो एंड वीजा आ जाएगा, या हमारे कंसल्टेंट ने गाइड किया कि सेम फाइल हम दोबारा से लगा देते हैं और वीजा आ जाएगा। ऐसा नहीं है। एम्बेसी ने आपका जो केस रिफ्यूज किया वो किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन से, किसी स्ट्रॉन्ग रीजन से किया। सो उस रीजन को समझ के, उस रीजन को ठीक करके, बी इट कोर्स सिलेक्शन, वो आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड हो सकता है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, आपका आइल स्कोर कम हो सकता है, या आपकी वीक एसओपी भी हो सकती है, वीक फाइलिंग भी हो सकती है। सो उस हमारे बेसिकली उस चीज को, उस रीजन को समझने की जरूरत है, उस रीजन पे वर्क करने की जरूरत है, और उसके बाद ही आप अपना वीजा अप्लाई करें। चाहे थोड़ा सा टाइम लेके 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने बाद अप्लाई करें, चाहे आपको इनटेक डेफर करना पड़ता है तो डेफर करें, बट आप ऐसे ही एज इट इज अपनी फाइल दोबारा अप्लाई मत करें कि इसी पे ही हमारा जो है वीजा अप्रूव हो जाएगा। इन केस आपको कहीं पर डाउट आता है कि मेरा तो कोर्स भी ठीक था, मेरे एकेडमिक्स भी अच्छे थे, मेरी एसओपी भी अच्छी थी, बट फिर भी मेरा केस रिफ्यूज हो गया, उसमें आपको कहीं डाउट क्रिएट हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा केस किस वजह से रिफ्यूज हुआ है, सो आप हमारी जो है गाइडेंस ले सकते हैं। आप हमें अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर सकते हैं, या आप कॉल पर भी हमारे साथ अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारी ईमेल आईडी नीचे मेंशन की गई है। वी विल ट्राई कि जैसे प्रभशरण का वीजा अप्रूव हुआ है, हम आपको भी हेल्प करें आपका वीजा अप्रूव कराने में। सो प्लीज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड अगर आप ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करिए। थैंक यू।